Hello, my dear students as well as dear friends. Let us discuss most important question of P block element, and this is the last question. Represent preparation, properties, and uses of sulfuric acid. Okay, this is asked in exam. When this was in old syllabus, at that time also asked in exam. Here in new textbook, this is also considered most important, not only most important, very most important question. Let us start. Write down question is asked like this: write preparation, properties and uses. Not all properties and all uses asked. Sometimes only preparation asked in 3 marks, because 3 reactions are there. If 2 properties asked, then 4 marks. If property is not asked, 2 uses asked, then 4 marks. Otherwise, this question is asked like this: write a note on contact process. And when the question asks write a note on contact process, at that time you have to write only preparations. You don't have to write properties and uses. Remember that thing. Okay. So let us start one by one reactions of preparation. So sulfuric acid industrially prepared by contact process, you know very well, because in 10th standard in Gujarat board syllabus also there is a contact process, but in that contact process some reactions are problematic. Here I will explain you the clear cut process, and this process, as I told you, involve 3 steps. Okay, तो उसमें पहला स्टेप है, एक सल्फर लेके सल्फर को हमें कंबस्ट करना है. सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप कंबस्ट करेंगे तो हमें वो देगा सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड, ये रहा रिएक्शन आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर. सल्फर व्हेन कंबस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, so heat is released, so this reaction is exothermic reaction. Delta H is negative. Okay, one reaction, one mark. Physical states you have to write. Sulfur is not gas, here written by mistake. Sulfur is solid. Oxygen gas. Sulfur dioxide is obtained in a gaseous state. Okay, see the second process. In second process we have to further oxidize sulfur and we have to get the next product. That one is the sulfur trioxide. Very simple. Sulfur converted to sulfur dioxide, first step, exothermic. Here sulfur dioxide converted to sulfur trioxide, second step. But the most important thing here is we require vanadium pentoxide is catalyst. If you forgot here to write vanadium pentoxide, then remember the mark is 0. The complete contact process killed. So very most important thing is this catalyst vanadium pentoxide. Without vanadium pentoxide, sulfur dioxide not completely converted into sulfur trioxide. This is the oxidation process. So catalyst most important. Student in exam forgot to write this vanadium pentoxide. Okay, so we get the product sulfur trioxide, SO3. here second step over. साथ में प्रिपेयर करते जाइएगा, बहुत ही ईजी प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप सल्फर कम्बस्ट टू सल्फर डाइऑक्साइड. सेकंड स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्टेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो ये जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज द की प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा रिएक्शन की रिएक्शन है. तो ये वेनेडियम पेंटोक्साइड कैटालिस्ट वाला रिएक्शन की रिएक्शन है. अगर आप वेनेडियम पेंटोक्साइड नहीं लिखते हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूरी किल हो जाती है. ठीक है, अब यही सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम एब्सॉर्प्शन चैम्बर में ले जाएंगे. एब्सॉर्प्शन चैम्बर में क्या करना है, हमारे पास पहले से ही सल्फ्यूरिक एसिड जो मिनरल एसिड पड़ा हुआ है वो हम उसमें डालेंगे. ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड ही बना रहे हैं. तो बच्चे पूछते हैं कि सर पहली बार जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाया होगा तो ये H2SO4 कहाँ से. ये मिनरल एसिड है, नेचुरली फ्रॉम अर्थ क्रस्ट मिलता है ये. ठीक है, तो पहली बार जब बनाया होगा तब उससे ही डाला होगा. तो
बाद में तो एक बार बन गया तो थोड़ा बचा लेते हैं ये एब्सॉर्प्शन करवाने के लिए। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमें मिलता है ओलियम। ये देखिए 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर एंड टोटल 7 ऑक्सीजन। बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरे स्टेप में हमें मिलता है ओलियम। ठीक है, ये टोटल 4 रिएक्शन है। लेकिन चौथा रिएक्शन जो है वो सिर्फ हमें ये ओलियम, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको पानी डाल के हमें मतलब डाइल्यूट बनाना है तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो थर्ड स्टेप में हमें मिलता है ओलियम। अब जो ये ओलियम मिलता है, दिस ओलियम वी हैव टू डाइल्यूटेड, my dear friends, this oleum we have to diluted by adding water. Okay, and we get the desired concentration concentrated sulfuric acid। और ये जो मिलता है हमें 96 to 98% प्योर मिलता है, उसमें 2 to 4% वाटर रहता है। तो ये देखिए रिएक्शन, उसको डाइल्यूट किया पानी डाल के डाइल्यूट किया तो हमें 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। ये पूरा बैलेंस रिएक्शन है। टोटल 4 हाइड्रोजन तो 2H2SO4, 2 सल्फर एंड 8 ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट साइड। तो हमें 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मिलेंगे। आगे हम इससे भी बहुत डिफ़िकल्ट रिएक्शन बैलेंस कर चुके हैं, तो अब ये बैलेंस करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार इस इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, जब सिलेबस बहुत पुराना था तब भी ये प्रोसेस आती थी पी ब्लॉक में। अब जब बुक सेमेस्टर सिस्टम में आई तब भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये एनसीईआरटी की बुक इफ़ेक्टिव है अभी गुजरात बोर्ड में, तब भी ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आपको इसमें से मिलते हैं। तो अब थोड़ा मैं इसका रिलेटेड, अब आप डिस्क्रिप्शन में रिएक्शन अपने आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, ओरली आप आंखें बंद करके बोलो। तो पहला स्टेप है सल्फर कंबस्ट विथ ऑक्सीजन वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड वी गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है। लास्ट हम करते हैं डाइल्यूशन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड स्टेप, लास्ट डाइल्यूशन करते हैं, थर्ड स्टेप अभी बाकी है। तो थर्ड स्टेप में हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमें मिलता है ओलियम। अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए। देखना, अब वही ओलियम आप डाइल्यूट करते हो पानी डाल के, तो हमें मिलता है 96 to 98% प्योर H2SO4। अगर इसकी डेंसिटी आपको दे दें तो आप इसकी मोलारिटी भी फाइंड कर सकते हो, कभी कभी पूछा जाता है। तो अब थोड़ा मैं इस प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए एब्सॉर्प्शन एंड डाइल्यूशन दोनों चीज़ें जो है वो साइमल्टेनियसली की जाती है। ध्यान देना इस बात के ऊपर। ठीक है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो ख़त्म हो गई। अब मैं थोड़ा इसके बारे में कुछ आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, जो हमारी बुक में भी लिखा है, आपके लिए भी काम आ सकता है। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली अगर होगी तो ये प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, और ये बारी बारी नहीं करनी है, वरना दोनों दोनों कॉस्ट जो है, दोनों प्रोसेस, दोनों चैम्बर कॉस्ट बढ़ा सकती है। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये जो है वो की स्टेप है, वो मैंने पहले बता दिया। पूरी प्रोसेस का कोई की स्टेप है तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन इन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो जितना सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, जितनी मात्रा में बनेगा, ज़्यादा बनेगा तो हमें ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। अगर प्योर होगा तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो जितना आप अच्छा और ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सके उतनी ही आपकी प्रोडक्ट अच्छी रहेगी, मतलब कि कन्वीनियंट रहेगी इकोनॉमिकली। तो आपको पता है कि पहला स्टेप एक्सोथर्मिक था, दूसरा स्टेप भी एक्सोथर्मिक है। तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, और प्रेशर हमें चाहिए हाई, अकॉर्डिंग टू लॉस एटेलियर्स प्रिंसिपल, रिमेंबर। ठीक है, क्योंकि
इस साइड हम SO2 और O2 2 मोल गैस डालते हैं तो SO3 1 मोल मिलता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो है, ऐसा है ना, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, ये ठीक है। तो यहाँ 2 मोल गैस है तो हमें मिलती है 1 मोल, मतलब कि प्रेशर रिड्यूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉस सेटेलियस प्रिंसिपल हमें अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो हाई प्रेशर लगाना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लो टेम्परेचर जो है साहब, अब बात वही आई हेबर प्रोसेस वाली। लो टेम्परेचर हम अगर करेंगे तो ये डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक। प्रेशर का तो कोई सवाल नहीं है, केमिकल काइनेटिक और प्रेशर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन टेम्परेचर की जब भी बात आती है तो हेबर प्रोसेस में यही प्रॉब्लम था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेबर प्रोसेस आप याद करिए, तो उसमें भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी। तो टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉस सेटेलियर अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो अब करें तो क्या करें, तो मैंने उसमें भी बताया था, यहाँ भी फिर से बता रहा हूँ कि इस कंडीशन में जब दो आदमी परेशान हो तो दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाता है। ठीक है, अगर ये करेंगे तो वो परेशान होगा, ये करेंगे तो दूसरे वाला परेशान होगा, तो क्या करेंगे, दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालो। ठीक है, तो चलिए, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्टेट। जैसे हेबर प्रोसेस में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम स्टेट, हेबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस मिक्स नहीं होना चाहिए। तो क्या टेम्परेचर डिसाइड किया जिसमें केमिकल काइनेटिक प्रोडक्ट भी अच्छी मिले, केमिकल काइनेटिक का प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए, लॉस सेटेलियर का प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। तो टेम्परेचर रखा 720 केल्विन, प्रेशर रखा 2 बार, कैटालिस्ट सिलेक्ट किया वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ऐसा मत समझना कि सल्फर डाइऑक्साइड विथ ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा अगर हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड नहीं डालेंगे। ठीक है, होगा लेकिन प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगी। ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो रिएक्शन फास्ट ले जाता है और प्रोडक्ट भी अच्छी रहती है। ठीक है, कैटालिस्ट कभी प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है उसको वो घटाता है, तो हमें जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप में जो SO2 बनाते हैं, पहला स्टेप आपको पता है सल्फर कंबस्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म SO2। तो पहले स्टेप में जो हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, अगर वो थोड़ा भी इम्प्योर है, इम्प्योर ही होता है कुछ मात्रा में, ठीक है, तो उसको पहले प्यूरिफाई करना होता है। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमें उसे प्यूरिफाइंग यूनिट से पास करना होता है। ठीक है, अगर उसको हम प्यूरिफाइंग यूनिट में से पास करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्योर बनेगा। इफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्योर देन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्योर। तो फाइनली जो सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। तो पहले से ध्यान रखना है कि इसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। तो एक मैंने स्केमेटिक डायग्राम यहाँ पे समझाया है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का ये स्केमेटिक डायग्राम माय डियर फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, अभी बुक में ड्रॉ करना है। फेयर नोट में यू हैव टू ड्रॉ दिस स्कीमेटिक डायग्राम टू अंडरस्टैंड हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, रिमेंबर। तो चलिए हम कुछ स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में बात करें। ये जो है PDF मैंने आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ ना, वो थोड़ी लंबी है। अगर इसको 2 लेक्चर में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना पड़े तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। ये पूरा स्कीमेटिक डायग्राम है। हमारी बुक में जो डायग्राम है वो भी स्कीमेटिक डायग्राम है, लेकिन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो मैंने थोड़ा इसको ईजी बनाया है। तो पहला स्टेप देखिए, हमारे पास एक पाइराइट बर्नर है, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। सी, ये पाइराइट बर्नर को यहाँ सल्फर को जलाया जाता है। तो पाइराइट बर्नर में से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज इम्प्योर, यहाँ पे लिखा है। अब ये इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड पहले डस्ट चेम्बर में डाला जाता है, तो उसमें अगर कोई डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स, उसको रिमूव किया जाता है। बाद में उसको कूलर में डाल के ठंडा किया जाता है।
बाद में स्क्रबर में डाला जाता है। स्क्रबर आपको पता है, जैसे कि हम कोई वेसल साफ करते हैं, ठीक है, कपड़ा धोते हैं तो हम ब्रश लगाते हैं, जो डस्ट नहीं निकल पाती है तो उसको कूल करके बाद में स्क्रबर किया जाता है, तो उसमें कुछ नहीं निकलने वाली इम्प्योरिटी भी निकल जाती है। बाद में उस गैस को ड्रायर में डाल के ड्राई किया जाता है, फिर भी उसके अंदर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी रहती ही है, क्योंकि जहाँ से सल्फर मिलता है, तो सल्फर मिलता है उसमें, उसका जो ओर्स है, मिनरल्स है, उसमें आर्सेनिक, आर्सेनिक सल्फाइड आपने सुना होगा। तो वो सल्फर डाइऑक्साइड में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी तो होती ही है। तो ये सब इम्प्योरिटी, ये एक, ये दो, तीन, चार, ये ड्रायर में डाल के हम ड्राई करते हैं तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो है वो भी सेपरेट हो जाती है। आर्सेनिक में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाती है, ठीक है। स्क्रबर में कुछ डिजोल्ड इम्प्योरिटी, पानी भी थोड़ा डाला होता है तो कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटी भी उसमें सॉल्युबल हो जाती है। उसको एक बार टेस्टिंग बॉक्स में डालना है। टेस्टिंग बॉक्स एक मशीन है जो हमें बताता है, जैसे हम ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं तो वो रिपोर्ट में दिखाते हैं ना क्या क्या प्रॉब्लम है, ऐसे टेस्टिंग बॉक्स दिखाता है कि इसमें कोई डस्ट या तो कोई दूसरी इम्प्योरिटी और कोई आर्सेनिक कुछ है। अगर नहीं है तो आगे ले जाना है, अगर उसमें है तो फिर से उसको, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना ब्लू लाइन के ऊपर, फिर से उसको यहाँ डस्ट चेम्बर्स में लाना है। जब ये टेस्टिंग बॉक्स बोले कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्योर है, तब भी उसको आगे ले जाना है। तो यहाँ तक 1 2 3 4 5, तो ये 5 चेम्बर्स जो है उसको बोलते हैं प्यूरिफाइंग यूनिट। ये नीचे लिखा है, देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब टेस्टिंग बॉक्स में अगर आपको ये पता चल गया कि द सल्फर डाइऑक्साइड इज अ प्योर, ओके, तो आगे ले जाओ, फिर से उसको हीट करो, क्योंकि आपने 5 चेम्बर में से ये प्यूरिफाइंग यूनिट पूरा है 5 चेम्बर, 10 चेम्बर, कूलर, स्क्रबर, ड्रायर, आर्सेनिक प्यूरिफायर, ठीक है। सीधा बॉक्सिंग डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ, इससे इजी कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। तो प्योर SO2 अगर आपको पता चल गया टेस्टिंग बॉक्स में, नहीं है तो फिर से डालो, है तो आगे जाओ, ठीक है। तो मैं आगे जा रहा हूं। अब चलो कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड प्योर है, तो उसको एक बार हीट कर लो, प्री हीटर। अब प्री हीटर में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, यहां तक पहला स्टेप चलता है, ठीक है, यहां पहला स्टेप चलता है। अब आपका दूसरा स्टेप आता है, ये की चेंबर है, की स्टेप यहाँ पे होगा। यहाँ वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, कैटालिटिक चेंबर है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, तो यहाँ पे इस चेंबर में से SO3 गैस बाहर निकलेगा। अब SO3 गैस को अगली वाली चेंबर में ले जाएंगे तो इसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन चेंबर, लिखा है। वहां से वहां ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है। तो ये यहाँ तक पहला रिएक्शन था, ये V2SO3 बना, ये दूसरा रिएक्शन है। अब ये ओलियम बना, ये तीसरा रिएक्शन है। अब देख लीजिए रिवर्स में जाके, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करेंगे एब्सॉर्प्शन चेंबर में तो ओलियम बनेगा। अब उसी ओलियम को नेक्स्ट चेंबर में लेके जाएंगे डाइल्यूशन चेंबर में, उसमें ऊपर से वाटर का स्प्रे करेंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, और फाइनली माय फ्रेंड्स वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड 96 to 98%, 96 to 98% प्योर। कोई शक? आप समझ गए पूरी बात? बहुत ही इजी प्रोसेस है। स्कीमेटिक डायग्राम में हर साल इसीलिए समझा रहा हूँ कि स्टूडेंट को थोड़ा इंटरेस्ट रहे, उसको सीधा उसके सामने आ जाए कि यस, पहले SO2 बनता है, बाद में SO3, बाद में ओलियम एंड लास्ट सल्फ्यूरिक एसिड। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है और आपकी प्रिपरेशन ख़त्म होनी चाहिए। इसमें कोई ये इससे इजी थियरी मेरे ख्याल से कोई हो ही नहीं सकती। मैं 20 मिनट के नियर अबाउट जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, अभी कितनी प्रॉपर्टीज ख़त्म कर पा रहे हैं वो देखते हैं। अब चलिए प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। ये पूरा वीडियो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक है।
ये सब प्रॉपर्टीज है, मुझे समझानी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक साथ में पीडीएफ में आप लोगों को भेज रहा हूँ। देखिए यहाँ तक यूजेस तक, ये यूजेस तक जाएगी, और यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर 16 ओवर हो जाएगा, और मैंने लिखा बी रेडी फॉर ग्रुप नंबर 17, ठीक है। तो देखते हैं इसकी लेंथ कितनी होती है, कहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक जाएंगे और बाद में इसको स्टॉप कर देंगे और आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ इजी इजी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं जो उसमें कुछ समझाना नहीं होता है। जैसे कि ये आपको पता है, आप लैब में गए हो और आपने सल्फ्यूरिक एसिड देखा भी है, आपके रैंक में बोतल एक भरी भरी रहती है, और जब रिंग टेस्ट करते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड भी देखा है। तो ये कलरलेस है, ऑयली थोड़ा दिखता है, डेंस लिक्विड है, ठीक है। और इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। डाई बेसिक है, वो तो मैंने ऑक्सो एसिड में भी बताया था। इसका ये डिजिट याद नहीं रखनी है आपको, अप्रोक्सीमेट लिखना है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है। ये 283 केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। अब आपको ये पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड की मोलारिटी बताओ, तो अब आप कैसे निकालेंगे इसकी मोलारिटी? तो डेंसिटी चाहिए, और मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला जरा आप याद रखिएगा कि जब भी आपको मोलारिटी इनऑर्गेनिक में पूछे तो मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई, अभी मैंने 96 98 जो दिए वो परसेंटेज वेट बाई वेट है, मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलार मास। मोलार मास है इसका 98, ठीक है। तो ये मोलारिटी मिलेगी आपको, क्या मिलेगा? ये मोलारिटी, मोलार मास से डिवाइड करो। फिर से बोलो फॉर्मूला, परसेंटेज वेट बाय वेट की जगह पे या तो आप 96 रख दो या तो 98 रख दो, जो भी रखो, मोलारिटी बहुत ज़्यादा आएगी इसकी, 16 या 18 मोलार ऐसा कुछ आएगा। अगर इसकी नॉर्मालिटी पूछे तो सिर्फ आपको मोलार मास की जगह पे उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट डालना है, 49। समझ गए? ये फॉर्मूला आप साइड में लिख लेना। आपको कभी कभी पूछा जाता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उसकी मोलारिटी फाइंड करो, तो ये इस फॉर्मूला से वो फाइंड होगी। 96 यहाँ पे रखो तो क्या होगा, 96 या 98 जो भी आपको दिया हो वो यहाँ पे 10, और नीचे जो भी अभी डेंसिटी और इसका मोलार मास 98 और डेंसिटी कितनी है 1.8 समथिंग है, ठीक है। तो ये आएगा आपका मोलारिटी। चलिए, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल है। वाटर में जब हम डालेंगे तो ये एक्सोथर्मिक, कभी कभी एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो केयर रखना जरूरी है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है वहाँ से हम एक दूसरा लेक्चर बनाएंगे और उसकी सब प्रॉपर्टीज़ जो है वो आगे डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ तक लिख लेना, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सब, और एक ये पानी में सॉल्यूशन बनाने वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।